Welcome guys to financial management. We are learning dividend decisions. Yes, we are going to start with the birds in hand theory, that is Gordon's revised model. Read it. On Gordon revise his dividend model and considered the risk and uncertainty in this model. The bird in hand theory of Gordon has two arguments. Investor are risk averse, okay. Investor puts a premium on certain return and discount on certain return. ठीक है. Gordon argues that what is available at present is preferable to what may be available in the future. As investors are rational, they want to avoid the risk and uncertainty. They would prefer to pay a higher price for share on which current dividends are paid. Conversely, they would discount the value of the shares of the firm which postpones the dividend. The discount rate which vary with the retention rate. Okay. The relationship between dividend and share price on the basis of Gordon's formula is shown as follows. Market price per share is equal to D0 plus in bracket 1 plus G divided by K E minus G. हमें फॉर्मूला थोड़ा सा 19-20 हो गया है. Should be D0 in bracket 1 plus G, I think divided by K E minus G. ठीक है. मालूम है तुमको P0 क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर है यहाँ पे. यस, it is X dividend. Then D0 is current year dividend. G is constant growth rate, annual growth rate of dividend. K is cost of equity मतलब expected rate of return. नॉर्मल चीज है यार ये तो. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे चलते फिर. It is financial model that values shares at discounted value of the future dividend payment. Under this model, the price of the share that will be traded is calculated by the PV of all expected future dividend payment discounted by an appropriate risk adjusted rate. The dividend discount model price is the intrinsic value of the stock. That is, intrinsic value is equal to sum of present value of future cash flow, मतलब future cash dividend plus PV of stock sale price at that time. ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है. In the above equation, it is assumed that dividend is paid at the end of each year and the stock is sold at the end of 9th year. जितना तुम कंसिडर कर रहे हो, आसान चीज है बे. फॉर्मूला छोड़, तेरे को समझ रहा ना. ये 1 डिवाइडेड बाय के ई रेस टू 1 क्या है? पहले साल का डिविडेंड इनटू दैट पीवी फैक्टर, दूसरे साल का डिविडेंड इनटू दूसरे साल का पीवी फैक्टर, तीसरा चौथा पांचवा सातवें साल बेच रहे. सेल वैल्यू वही दिया है. RVN मतलब रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर डिवाइडेड बाय पीवी फैक्टर ऑफ nth ईयर मतलब मल्टीप्लाइड बाय द पीवी फैक्टर ऑफ nth ईयर. खत्म. देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिचुएशन. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, पहला जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ. DDM के बारे में दिया है, सही बात है ना. जीरो ग्रोथ रेट क्या है? assumes all dividend get paid by stock remains same in this case the stock price would be equal to stock intrinsic value annual dividend divided by required rate of return. P0 is equal to D upon KE. D is annual dividend, KE is cost of capital, P0 is market price per share. चलो एग्जांपल ले लेते हैं. नो ग्रोथ, 5 रुपीज पर शेयर. ठीक है ना. 5 डिवाइडेड बाय 0.10 50 रुपया मतलब 10%, 50 रुपीज. खत्म. समझा?
₹5 डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय 10%, यही कांस्टेंट ग्रोथ रेट, दैट इज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल. D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. ये अपन ने फॉर्मूला देखा ना गॉर्डन्स का, बर्ड्स इन एंड थ्योरी. Illustration 6. XYZ is a company having share capital of 10 lakh of 10 each. ठीक है. The distributed current dividend of 20%, ₹2. Annual growth rate is expected to be 2%. ठीक है. 1 plus G means it's ₹2 in bracket 1.02 divided by expected is KE. KE means 0.15 minus 0.02 G मतलब 0.13. 2.04 divided by 0.13. Six nine. खत्म. Over. वेरिएबल ग्रोथ रेट. वेरिएबल ग्रोथ रेट मतलब अपने को अलग अलग साल के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, जो ऊपर के फॉर्मूला में दिया था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, फ्यूचर डिविडेंड्स प्लस रियलाइजेबल वैल्यू अपन ने देखा था ना, बस वही दिया है. Variable growth rate model, multi-stage growth model can take many forms, even assuming the growth rate is different for every year. However, the most common form is one that assumes three different rates of growth: an initial high rate of growth, transition to the slower growth, and lastly a sustainable steady growth. Basically, constant growth rate model is extended with each phase of growth calculated using the constant growth rate method, but using three different growth rates of three phases. The present value of each stage are added together to derive the intrinsic value of the stock. Sometimes even the capitalization rate or the required rate of return may be varied if changes in the rate are projected. This is referred to as third stage growth model. ठीक है, three stage growth model. Just a moment. चलो we'll start again. पढ़ो. Problem. A firm had paid dividend of ₹2 per share last year. ठीक है. Estimated growth of the dividend of the company is 5%. ठीक है. Determine the estimated market price of the equity share if the estimated growth rate of dividend rises to 8%, falls to 3%. Also find out the present market price of the share given that the required rate of return of the equity investor is KE is 15%. ठीक है ना, सब दिया है, नॉर्मल चीज है. चलो फॉर्मूला में डालो. D0 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. पहले 5% से निकालो, 15% KE लो, वही दिया है ना अपने को. करंट मार्केट प्राइस ये देखा, अरे करके दिया है, क्यों कर रहा हूं मैं. 1.05 इंटू 2 मतलब 2.10 डिवाइडेड बाय 5% जाएगा, मतलब 10% से डिवाइड करो उसको. कर 2.1 डिवाइडेड बाय 10%. दिस इज करंट मार्केट प्राइस. अब 8% जाएगा, 8% मतलब 1.08 मतलब 2.16. 2.16 15 में से 8 चले जाएगा 7. 2.16 डिवाइडेड बाय 7%. खत्म, आ गया. अब 3% पे लाना है. कर 2.06 डिवाइडेड बाय 12%. ओ नॉर्मल चीज था ना, वो डिफिकल्टी है, समझा ना पक्का. श्योर.
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लो. द एडवांटेज क्या है बेटा, गॉर्डन्स के डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज यूजफुल मॉडल. यस, पढ़ लो अभी सब. इजी टू अंडरस्टैंड दिया है. डिपेंड लिमिटेशन प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो डिफिकल्ट है एक्यूरेटली कैलकुलेट करने को. ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, ठीक है. इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर गॉर्डन्स मॉडल. With dividend growing at constant rate, the share price also grows at G. Definitely. देख चुके अपन है. So both dividend and price have grown at the rate of G. Yes or no? Given R is constant. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी सेम रहे, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही इधर रिटर्न्स बढ़ रहे हैं. मतलब यील्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. स्टॉक स्प्लिट्स क्या रहता, स्टॉक स्प्लिट, अरे 100 रुपए का शेयर है, आया ना, 100 रुपए का शेयर है, 20-20 रुपए के 5 हुए. यहाँ पे दिया 500 का शेयर है, 100-100 रुपए के 5 शेयर हुए, खत्म. स्टॉक स्प्लिट मीन splitting one share into many. Say one share of 500 into 5 shares of 100. Stock split is a tool used by the companies to regulate the prices of share. If the share price increases beyond the limit, it may become less tradable. Example, suppose the company's share price increases from 50 to 1000 over the year. It is possible that it might goes out of the range of many investors. मतलब मेरे जैसे जो गौर गरीब जनता है वो खरीद नहीं सकते ना वो टाइम पे, तो उनके लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया. अरे जो भी नए लोग आने वाले हैं, वो हाई वैल्यू शेयर में इन्वेस्ट करते टाइम डरते हैं, तो उनके लिए क्या बेटा, स्प्लिट करो, उनके बजट में लाओ ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और उसकी ट्रेडिंग बढ़े, खत्म. इट मेक्स शेयर अफोर्डेबल बोला था टू स्मॉल इन्वेस्टर. नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, hence the potential of investment may increase. Limitation additional expenditure है, need to be incurred on the process of stock split. Low share price may attract speculator or short term investor which are generally not preferred by any company. Definitely. Now share buyback, you all know share buyback. हम लोग अपने ही शेयर परचेस कर रहे आउट ऑफ फ्री फंड्स अवेलेबल विद अस, मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स. अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो पैसा रख के क्या करेंगे, इससे बेहतर है वी विल गो फॉर बाय बैकिंग आवर ओन इक्विटी, देन वी विल कैंसिल इट विद इन 7 days. कंपनी लॉ 2013 के हिसाब से उसमें वो सारी प्रोविजंस दी गई है, आया ना, पता है ना. हाँ, वही चीज दिया है. उससे क्या होगा, तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो ईपीएस बढ़ेगा, और जो एक्सेस फंड पड़ा है वो भी चले जाएगा. इन सिंपल टर्म मीन्स बाइंग repurchasing own share by company resulting into decrease in share capital of the company. Thus, the shares brought back are cancelled, leading reduction in outstanding number of shares. यही था. Share buyback is also a form of shareholders dividend. Definitely. As the number of circulating shares in the market fall, the amount of dividend per share in the future increases. वही बोला ना, ईपीएस डीपीएस दोनों बढ़ेंगे, आया ना. There are two main types of buyback that can be performed by the companies. One is through an open market and another is through tender offer. एक ओपन मार्केट से बायबैक है और दूसरा टेंडर ऑफर है. While company intending to buyback through open market, it need to go through secondary market. However, in case of tender offer, the company offers a fixed price
where all the shareholder can participate or sell their shares. Eighth illustration, please read. ये मिसलेनियस है, फिर नाइन्थ है, फिर टेंथ है. वाओ, अभी प्रॉब्लम ही बचेगा. फिर 11th है. खत्म. 4 एग्जाम्पल है, ले लेते. प्लीज रीड. उसको एडजस्ट कर रहे. RST Limited has a capital of 10% in equity shares of 100 each. The shareholder are currently quoted at par. The shares are currently quoted at par. The company proposes to declare a dividend of 10 rupees per share. At the end of the financial year, the capitalization rate for risk class of which the company belongs is 12%. Compute the market price of the share at the end of year if dividend is not declared. Dividend is declared. ठीक है. Assuming that the company pays the dividend and has a profit of 5 lakh and makes new investment of 10 lakh during the period. ठीक है. Number of new shares to be issued. MM मॉडल यूज करना है. KE दिया है 12%. नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग दिया है 10,000. करंट मार्केट प्राइस दिया है कितना बेटा? 100 रुपया. ऊपर ही दिया है. नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया. एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है बेटा? 10 रुपीज पर शेयर, क्योंकि दिया है ऊपर. इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की. कितने न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे? अरे येड़े, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए से 1 लाख डिविडेंड जाएगा. बचेंगे कितने? 4 लाख. टैक्सेशन का कुछ दिया है तेरे पास? हाँ या ना? क्योंकि MM मॉडल में टैक्सेशन है ही नहीं, तो तेरे को जरूरत कितनी पड़ेगी? ऑब्वियसली जा नीचे. इतना क्यों सोच रहे बे? P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रूल था अपना. हाँ या ना? P1 क्या अपना निकालने का है. D1 क्या है? 0. क्यों? डिविडेंड नहीं दिया. 2 कंसिडरेशन है, एक नहीं दिया, दूसरा दिया. सो D1 इज 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, मतलब 1.12. मल्टीप्लाई कर 100 को. P1 आएगा 112. ₹100 से बढ़ के 112 हो जाएगा. डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या होगा? कुछ नहीं. P1 प्लस 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.12. 112 माइनस 10, 102. क्योंकि मैं तुमको कितना देने वाला हूं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के इतना, के इतना 12 रुपया. एक तो ग्रोथ के हिसाब से दूंगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, 112 होगी. या अगर डिविडेंड ले रहे हो तो शेयर प्राइस कम होगी उतनी. अरे लॉजिकल है ना. टैक्स नहीं, कुछ नहीं. मैं 12% दूंगा. अब 12% ऐसे का, नहीं तो ऐसे का. ऐसे खाएगा बिना डिविडेंड के तो 112 रेट ले. तेरे को ऐसे ही खाना है तो 10 रुपए डिविडेंड ले, 2 रुपए शेयर की ग्रोथ ले. दिख रहा है ना? और ये अपन ने MM में देखा था. हाँ या ना? अब मैंने तेरे को क्या बोला? 1 रुपया, 1 लाख रुपया अपन डिविडेंड बांटेंगे अगर डिविडेंड दे रहे होंगे तो. 10 रुपया डिविडेंड 10,000 शेयर्स के लिए. 10,000 इंटू 10 कितने होते? 1 लाख. तूने कमाए 5, उसमें से 1 दी दे, कितने बचे? 4. तेरे को चाहिए 10 लाख. कितने लाने पड़ेंगे? 6 लाख. 6 लाख डिवाइडेड बाय 102, क्योंकि डिविडेंड दिया तो रेट रहेगा 102 का. क्या आ गया ना? खत्म. तुमने किया नहीं था? कि नहीं किया था?
ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व करके लिया ना पहले एग्जाम्पल में। किया था कि नहीं किया था? फिर तुम ऐसे कंफ्यूज के होके क्यों बैठे हो? आता नहीं है क्या? चलो आगे। इलिस्ट्रेशन 9 ले लो। अर्निंग 5 लाख, डिविडेंड पे रेशियो 60%, मतलब 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख, 3 रुपए पर शेयर। इक्विटी कैपिटल जनरेशन रेट 12%। की रेट ऑन, अरे बीआर बीआर, मार्केट वैल्यू क्या? एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल नॉर्मल था, डिविडेंड प्लस आर डिवाइडेड बाय की इन ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइडेड बाय की। आया ना? तुम्हारे पास डी है 3 रुपए मैंने निकाल के दिया ना। तुम बोले सर कैसे 5 लाख, डीपीएस 60%, 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो 3 रुपया। आया ना? अरे ईपीएस 5 है और डीपीएस 3 है, तेरे पास ई भी है और डी भी है इस फॉर्मूला में। सो ईपीएस 5 माइनस डीपीएस 3, तो वो आएगा 2। आर ऊपर नीचे के ई, आर मतलब कितना 15%, 0.15। के ई कितना है 0.12, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 2। पागल है क्या? हाँ 2.5। यस, डी में ऐड कर उसको, 3 रुपए प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 12%। के ई ये भाई लिख के दिखाओ क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में पूछ रहा हूँ। श्योर ना? तो मैं ओरली सॉल्व किया इसलिए बोला। बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है आफ्टर कमिंग टू द इंटरमीडिएट लेवल। तुम 11th के लेवल के नहीं हो, 12th के लेवल के नहीं हो, ना ही फाउंडेशन के लेवल के हो। यू आर एट इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे तुम्हारा ओवरऑल कैलकुलेशन तो उतना बढ़ेगा ही ना। ई माइनस डी 5 - 3 2 रुपया, 0.15 अपॉन 0.12 1.25। हाँ 1.25 मैं बोल रहा हूँ ना, 1.25 इंटू 2 इट इज 2.5। सो 3 प्लस 2.5 5.5 डिवाइडेड बाय 12%। अब मेरे को ओरल आ रहा है तो तुम इंटर में हो, तुमको भी आना चाहिए ना थोड़ा बहुत। और फॉर्मूला तो मैं बोला ना, ये टॉपिक बहुत आसान है। एज इट इज फॉर्मूला लिखने का है, तुमको वैल्यूज दिए पुट इन करने का और सॉल्व करने का। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो भाई इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। नहीं रहता याद तो 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 10 बार लिखो, याद तो रखना पड़ेगा। याद तो रखना पड़ेगा ना, बिना याद किए कैसे चलेगा? पास कैसे होंगे ना अपन? अगर ये 4 मार्क को, 6 मार्क को, 5 मार्क को क्वेश्चन आ गया और तुमको फॉर्मूला नहीं आ रहा है इसलिए तुम्हारा गलत हो रहा है, तो फिर तो तुम कोई फायदा नहीं। क्योंकि 5 मिनट में 5 मार्क देने वाले क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं है मेरा हुआ वाला, इसकी वजह से अगर तुम्हारे ये मार्क जा रहे होंगे तो सीधा अगले अटेम्प्ट को बैठो। ये अटेम्प्ट को बैठने का ही क्यों? सही बात है कि नहीं है? हाथ से मार्क जा रहे हैं ना, तो फॉर्मूला रट के आओ, खुला बोलता रट के आओ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तीन ही चीजों पे चलता है, डिविडेंड, केई, ग्रोथ रेट। यस और नो? और ये इसमें दो चीजें ऐड होंगी, ईपीएस और आर। बाकी हर एक चीज वैसी की वैसी है। एमएम में तो टैक्सेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लेन फॉर्मूला है। बर्ड्स वाला ग्रॉडन का वो भी अच्छा है, सिंपल फॉर्मूला है, डी इन ब्रैकेट 1 + जी डिवाइडेड बाय के है क्या उसमें? नहीं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल में क्या होता है? डिविडेंड देते नहीं है ना। अरे हाँ या ना? बट ना, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
वो टाइम पे अपन डिविडेंड देते हैं क्या? नहीं देते. Price of share increases as the dividend payout ratio decreases. Hence, the optimum dividend payout ratio in this case is nil. तुमने वो टेबल देखे थे ना? आर अगर आर ग्रेटर देन के ही है तो डिविडेंड नहीं देते. आर इज इक्वल टू के ही है. पक्का. और इफ आर इज लेस देन के तो याद आ रहा ना? दो जगह पे था वो, ऊपर और नीचे. खत्म. सो डिविडेंड जीरो है. इसका मतलब क्या? 5 × 1.25. 5 मतलब ईपीएस है ना, इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 12%. हाँ, क्योंकि तेरे को डिविडेंड का जो भी कंपेंसेशन है वो प्राइस हाइक में मिलेगा. समझा क्या? अगला 10th illustration. Taking an example of three different firms, that is growth, normal and declining. Calculate the share price using Gordon's model. ठीक है, ये वॉल्टर था. अब गॉर्डन में चलते. गॉर्डन मालूम है तुमको? अभी सीखा. अभी जो पिछला सीखा वही गॉर्डन मॉडल था, लेकिन उसमें भी तीन चीजें. आर दिया होगा तो आर इज ग्रेटर देन रहा कि तो अरे दिया है ना, क्वेश्चन देखना है. पहला 15% आर है, के 10% है. दूसरा 10% है और तीसरा 8% है. आर इज लेस देन के. ईपीएस दिया है 10 रुपया. रिटर्न अर्निंग बी दिया है 0.6 और 1 माइनस बी. डिविडेंड पे आउट कितना है? 0.4. बोलो ग्रोथ मॉडल में क्या है? सिचुएशन 1, आर इज ग्रेटर देन के. ये तेरा क्या है? गॉर्डन है. देख फॉर्मूला क्या है? E1 इन ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के माइनस बी आर. सही बात है कि नहीं है? अब ई कितना है तेरा? तेरे को मालूम है 10 रुपया. तीनों केस में 1 माइनस बी कॉमन है तेरा, 0.6 चले जाएगा. रिटर्न अर्निंग है ना बी. यस, मतलब तू बांटने के लिए अवेलेबल कितने है तेरे पास? 0.4. अरे डिविडेंड पे आउट 0.4 है ना. 1 माइनस बी इज डिविडेंड पे आउट. सो डिविडेंड पे आउट कितना है? 0.4. 40%. तो 10 रुपए के 40% 4 रुपया. नीचे के ई माइनस बी आर. के ई तेरे को मालूम है हर जगह पे सेम है 10%. बी आर क्या है? पहले यहाँ पे 15%, दूसरे केस में 10, तीसरे केस में 8. खत्म. तो वही करा ना. तो आर तो मालूम है तेरे को 0.6 ही है ना. ऐसा क्या कर रही है? ऊपर डिविडेंड का रेशियो आता है पे आउट का, और नीचे आर आता है. आर इज 0.6. रिटर्न अर्निंग मतलब बी. ये सुनो, बी आर. वही तो बी इज रिटर्न अर्निंग ना, यही इज इक्वल टू आर है ना. आर दिया है ना ऊपर यार, क्या पागल बनती है. सॉरी 1510. हाँ, आर 1510 है. ठीक है, ठीक. रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग. रिटर्न अर्निंग मालूम है तेरे को, लेकिन 0.6 इंटू दैट कर. 15% इंटू 6%, 0.9%. खत्म करना है. 400 आ रहा है. सॉल्व करके तेरे पास है ना कैलसी. ये 400 आ रहा, ये 100 आ रहा, ये 76 आ रहा. क्यों? आर इज ग्रेटर देन के, मतलब मैं तेरे से ज्यादा कमा सकता हूं. हाँ या ना? खत्म. नॉर्मल बम रही तो इक्विवेलेंट लेवल पे चलेगा. तू भी 10% कमा सकता, मैं भी, इसलिए प्राइस नॉर्मल रहेगी. और तीसरे केस में के ज्यादा है,
मतलब कंपनी ज्यादा पे आउट दे रही है, तो वो टाइम पे भाव क्या रहेगा, कम। ये बहुत अच्छा है। इन दिस रिलेशन रिटेंशन रेशियो बी चेंज फ्रॉम 0.6 to 0.4, न्यू प्राइस विल बी, कुछ नहीं, जहां पे अपन ने 0.6 किया था वहां पे 0.4 करो। अपने आप पहले ऊपर आ रहे थे 4/, अब आएंगे 6/, 150, 100, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 88.24। अब इसका कंक्लूजन देख, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के द मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस विद द रिटेंशन रेशियो, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा। आर इज लेस देन के, market value of share stands to decrease. R is equal to K, the market value is not affected by the dividend policy. The conclusion of the Gordon's model is similar to that of Walter model. चलो आगे, illustration 11. The following information is given below. In case of Aditya Limited, EPH 60 रुपया, कैपिटलाइजेशन रेट 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है तो रिटेंशन है 0.7, 70%। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है और आर भी दिया है 25। आर कितना है बेटा, 25, ये सुनो, के ही है 15, डिविडेंड 30% है, मतलब अर्निंग 60 रुपये है, 60 रुपये में से 30% मतलब 18 रुपये बांटेंगे। कंप्यूट द प्राइस पर शेयर, वॉल्टर मॉडल मतलब वही, तेरे को मालूम है, डिविडेंड प्लस आर डिवाइडेड बाय के इन ब्रैकेट अर्निंग माइनस डिविडेंड, 30 माइनस डिविडेंड आते 18, अपन ने देखा ना अभी, 60 रुपये माइनस 18 रुपये, कितना आ गया, 42 आ गया ना। आर है कितना, 25, 25 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 42 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 15%, खत्म, आ गया। सेकंड वाला, व्हाट वुड बी ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर अंडर गॉर्डन्स मॉडल, ये ऑल्टर हो गया, अभी गार्डन में जाओ, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर गॉर्डन मॉडल, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0। देखा था तुमने, तो एक लाइन के आंसर के लिए 2 मार्क मिलेंगे। 5 का क्वेश्चन आता है तो 3 ऊपर 2 नीचे, 4 का आता है तो 3 ऊपर 1 नीचे, 3 का आता है तो 2 ऊपर 1 नीचे, जनरली 4 का आएगा, 3 + 1, खत्म हो गया टॉपिक। अभी आगे चलते, ये फॉर्मूला अच्छे से कर लो, अगर फॉर्मूला नहीं करोगे तो भाई मेरी जिम्मेदारी में पहले बोल देता। वैसे मैं टेस्ट लूंगा, वो टेस्ट में अगर मेरे को कोई नखरा दिखा तो मैं रट्टे दूंगा। अरे काफी क्वेश्चंस है, देयर आर 9 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ बना है क्या? ठीक है, अगले लेक्चर को ले लेते फिर। थैंक यू।